आतिफ साहब आए हैं हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आतिफ इज हियर सर। जी आतिफ साहब अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देंगे। जी बेसिकली मैं कॉर्टिवा एग्री साइंसेज में जॉब कर रहा हूँ जी, एज अ एरिया फॉरेजेस मैनेजर साउथ पंजाब सर। वेटनेरियन हूँ बाय प्रोफेशन जो है वो, और एक छोटा सा जो है वो एक अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ डेयरी के हवाले से, फैमिली बिजनेस। फाइन, वही साउथ में ही कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सर। सही, गुड, थैंक यू। जी वेलकम। जी अब्दुल रहमान, आपकी एमफिल कहाँ तक पहुँच गई? जी सर, रिसर्च होगी कंप्लीट। आवाज आपकी नहीं आ रही अब्दुल रहमान, बहुत लो है। सर अब आ रही है आवाज? थोड़ा सा या तो अपनी वैसे वॉइस ऊंची कर लो। यस सर। जी सर रिसर्च होगी कंप्लीट और अब लैब का थोड़ा काम रहता है और थीसिस चल रहा है। राइट, तो रिसर्च का भी थोड़ा सा बताएंगे, क्या किया आपने, क्या था उसमें? सर बेसिकली सर जो सनफ्लावर है उसको पहले एक्सट्रूड किया, मतलब एक्सट्रूडेड फॉर्म ऑफ सनफ्लावर, और शीप पर काम किया, मतलब विद हे, अल्फाफा हे के साथ मिलाकर। तो तकरीबन 3 मंथ्स का ये ट्रायल था और मेन ग्रोथ परफॉर्मेंस वगैरह पर इसको वर्क किया। राइट, जी मैंने ये थोड़ा सा प्रोफाइल जीन टेक का इसमें शेयर किया आपके साथ। डॉक्टर एहसान की तरफ से अभी उनकी कोई कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। ही इज आस्किंग जस्ट फ्यू मिनट्स टू गेट कनेक्टेड।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एहसान अभी ज्वाइन नहीं कर पाए। आई विल start the session in the name of Allah Almighty, who is most beneficent, most merciful. This session is mainly designed to focus on the requirement of the degree graduates, because this is the time when they are getting their degree and they are going to join the private sector, or they are looking for some other jobs. So this is a sort of you can say to look for the sector, and then what should be the basic requirements that we are looking in a graduate when they are going to apply for some jobs. Because in public service commission or in government services, most of the students when they go for applying in the sector, they usually ask what should be the criteria of the selection, or how we can perform better in the interview. So these are some of the questions. But the other side of the story is government jobs. They are you can say that they are now shrinking day by day. Rather, government is not going to even recruit the new staff. And on the other side, they are rather going to reduce the staff. In some of the departments, the vacant seats, which are you can say that they were vacant for the last 1 year, they simply abolish all those seats. So that's a very difficult situation, particularly for those graduates who are now in the sector. And they have their degree, but unfortunately they are not able to get the job. So that's why I plan to have a session with Dr. Ehsan. So Dr. Ehsan is now online. The sole, you can say, objective of this webinar or this live session is to introduce a person who started a government job, then he quit that job and started his own business with a very small amount of money. Now he is running, mashallah, a very good business, and he can guide in a very well way. Particularly in this situation when the students they do not have a very lucrative jobs, and they have their resources, or rather limited resources, and they would like to start their own business. So I welcome Dr. Ehsan. He's the CEO of Green Tech International. I have already shared the brief profile of the company. Basically, they started their business with semen import, and then they later on started importing different other livestock management items and those tools which are required in animal reproduction. So without wasting time, I welcome Dr. Ehsan and Dr. Ehsan, Assalamu alaikum and welcome to the session. So I just move on to your side.
to just start the session with your introduction, your company introduction, and then we will have a interactive session. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो माजरत, मेरे कुछ ना अचानक गेस्ट आ गए थे ऑफिस में, जिस वक्त मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ कौन कौन है? अब्दुल रहमान है ऑनलाइन। ऐसा इसमें अभी हमारे पास 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें कुछ तो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या अभी उनकी रिसेंटली नेक्स्ट मंथ में उनकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। कुछ हमारे पास सेक्टर से भी हैं, लाइक आतिफ साहब हैं जो अपना एक स्मॉल डेयरी का बिजनेस भी रन कर रहे हैं। अभी इनका इंट्रोडक्शन इनसे मैंने किया था। ये हमारे पास अभी कंपोजिशन है। अच्छा, अभी ऑनलाइन तो मुझे एक ही नजर आ रहे हैं, अब्दुल रहमान साहब बस। नहीं, ये मेरे पास 13 के नेम आ रहे हैं। ये इसको अच्छा। आप अगर न्यूज में जाके कर लें तो ये आ रही हैं। कुछ की वीडियोस जो है वो ऑफ हैं। अच्छा। तो सारे सुन रहे हैं हमें मुझे? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सुन रहे हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। और पहले तो मैं माजरत करूंगा दोबारा, मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह बल्कि ऑफिस में फंस गया था, मेरे पास कुछ लोग आ गए थे। सर मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल है, मैं डॉक्टर तनवीर साहब का क्लास फेलो भी हूँ। हमने यूनिवर्सिटी से इकट्ठे ग्रेजुएशन किया था, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और मैंने शुरू में पहले 5 साल एक जर्मन प्रोजेक्ट था GTZ के नाम पे, जर्मन एजेंसी फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन। और कुछ लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा हल्ला का। हल्ला के नाम से एक दूध दही का प्रोजेक्ट होता था, जिसमें डेयरी कोऑपरेटिव नाम, इदारा किसान के नाम से वो चलता था। 5 साल उसके साथ काम किया। उसके बाद मैंने 7 साल ब्रुक हॉस्पिटल एनिमल्स में काम किया, जो कि यूके की ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद फिर मैं फेडरल गवर्नमेंट में चला गया, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में ना। उधर मैंने तकरीबन 1-1.25 साल गुजारा है। उसके बाद मैंने रिजाइन देके तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो जितने भी स्पेशली जो ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी जिनकी डिग्री होनी है या हो गई है, मेरी उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है बस, कि आप बिल्कुल ये जो है ना जॉब के बारे में ये सोचना ही छोड़ दें कि जी मैंने पढ़ के या डिग्री करके तो जॉब करनी है। यानी कि आप समझें कि अगर आपने ये डिग्री DVM कर लिया है तो आपने अगर जॉब ढूंढनी है तो समझिए आपने फिर कोई फायदा नहीं आपको पढ़ने का। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आपके इधर इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के एक लड़का हमारे हाफिजाबाद, मैं बेसिकली हाफिजाबाद का रहने वाला हूँ, उसका नाम है फरीद, डॉक्टर फरीद भट्टी नाम है उसका। अभी मेरे 2 साल हो गए इधर से ग्रेजुएट्स किए हुए। ये आकिब भी है मेरे ख्याल। आकिफ भी है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। गुड। तो मैं वो बता रहा था कि हमारे हाफिजाबाद का एक लड़का, वो आपके एरिड से पढ़ के गया है। वो इधर मेरे पास आया लाहौर में ना, कुछ जॉब शॉब ये वो करने, कि यार मैं क्या करूं ऐसे ना। तो मैंने उसको मशवरा दिया एक, मैंने कहा यार तुम हाफिजाबाद, तुम पढ़े लिखे बंदे हो, अनपढ़ तो हो नहीं। मैंने कहा तुम हाफिजाबाद में जिधर भी कोई जो जगह मिलती है ना, एक नुक्कड़ पे एक छोटी सी दुकान लेके बैठ जाओ, बस अपना बोर्ड बार लगाओ और थोड़ी सी मेडिसिन रखो और तुम बस काम शुरू करो अपना। अब आप बिलीव करें कि अब उसका माशाल्लाह विद इन 2 ईयर वो अच्छा भला उसका काम, यानी कि वो अब मेरा ख्याल है 1.5 महीने का कमा रहा है। ये भी स्टार्टअप है। बिजनेस एक ऐसी चीज है, आप जैसे एक समझ लें कि आपने कोई अगर किसी जगह जाना है, किसी एक फर्स्ट स्टेप आपने लेना है बस, फिर आगे अल्लाह ताला रास्ते खोलता रहता है। आप स्टेप लें। और जॉब के बारे में तो बिल्कुल टोटली छोड़ देना सोचना कि जॉब करनी है आपने। आप कुछ भी ना करें ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप सिर्फ 50 बच्चे ले लें सिर्फ, ठीक है, उनको लेके पालना शुरू कर दें। आप साल बाद सेल करेंगे तो आपके पूरे साल की सैलरी जो है वो निकल जाती है। आप बीइंग ए प्रोफेशनल जो है ना, आप इसको जो भी आपका इंटरेस्ट है, जितने भी पैसे आपके पास हैं, 50,000 इवन है, लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, आप अपना काम शुरू कर दें। बस मेरी ये सबको एडवाइस है कि अपना काम शुरू करें, बजाय इसके कि मैंने पहले तकरीबन 14 साल मैंने जॉब की है, ठीक है। 14 साल जॉब के बाद अभी मुझे तकरीबन 11-12 साल हो गए बिजनेस के अंदर। तो मुझे अब रियलाइज होता है कि यार मैंने जो पहले 12-14 साल किए है ना, शायद वो भी अल्लाह ताला को, वैसे ये भी होता है कि हर काम जो भी होता है ना वो अल्लाह ताला के एक मुकर्रर करदा टाइम के मुताबिक होता है, बस ना उससे पहले होता है ना बाद में होता है। लेकिन आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन जरूर होनी चाहिए कि यार मैंने कुछ करना है बस। और आप नीयत हो और अल्लाह ताला, आपकी नीयत ठीक हो और अल्लाह ताला पे आपका पूरा बिलीव हो
और उससे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं कि जब डिग्री कर ली आप पता नहीं जॉब मिलनी है नहीं। भाई जॉब क्या है, आप खुद क्यों नहीं जॉब देने वाले बनते? आप सिर्फ ये सोचें कि यार मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे सब इल्म है और मैंने कुछ करना है और आपने लोगों को रखना अपने काम के लिए। आप कोई भी काम स्टार्ट कर दें, इवन आप सिर्फ अपनी शॉप के ऊपर एआई का काम शुरू कर दें। सिर्फ मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, कुछ लोगों को पता भी होगा, आपने कभी ये जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो वीए होते हैं, वेटरनरी असिस्टेंट जिनको हम कहते हैं, या एआई टेक्नीशियन कहते हैं, आपको पता है वो मंथली कितना कमाते हैं? कोई बता सकता है मुझे? हेलो जी सर, इस पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक जॉब भी करता है, हमारे स्टूडेंट्स को ही पता है, मेहदी उसका नाम है। तो वो ऑफ टाइम में अपनी यही एआई सर्विसेज और अपना मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो वो पे से 2-3 गुना जो है वो उससे ज्यादा ले रहा होता है। ठीक है, ये है। हाँ, ये बस यही मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप लोग माशाल्लाह ग्रेजुएट होके डीवीएम करके बेस्ट क्वालिफाइड, दुनिया के अंदर अगर आप डॉक्टरी के हिसाब से देखें ना, दुनिया में मैंने अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया घूमी है, कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको जैसे अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, यूरोप, सारा जिधर मैं नहीं गया। आपको बिलीव नहीं होगा कि जो वेटरनरियन है इनकी सबसे ज्यादा प्रेस्टीज वाले डॉक्टर होते हैं बाहर के मुल्कों में। ठीक है, और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो आप बिलीव करेंगे जो हमारे एआई टेक्नीशियन होते थे या वेटरनरी असिस्टेंट होते थे, उनकी महीने की आमदनी ना 1.5-2 लाख रुपए होती थी इनकम उनको, यानी कि सारा दिन काम नहीं होता था। आप देखें ना, आप छोटी सी मैं बात बताता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, आज भी मेरे भाई फार्मिंग करते हैं, मेरी फैमिली पूरी फार्मिंग करती है। उनको अगर कोई उनको जानवरों के लिए ट्रीटमेंट चाहिए होगा ना, तो वो आराम से किसी टेक्नीशियन को बुलाया, किसी वेटरनरी असिस्टेंट को फोन करेंगे, वो आएगा, 2-4 इंजेक्शन लगाएगा और 1,000-1,500-2,000 रुपये लेकर चला जाएगा। और ये दिन में वो 8-10 इस तरह के काम करता है एक टेक्नीशियन जो होता है। एक टेक्नीशियन कर रहा हूँ, डॉक्टर नहीं कर रहा, मैं टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ यही कहने का, और डॉक्टर साहब ने भी इसका एंडोर्स किया कि वो बंदा जो आपके यूनिवर्सिटी में है, मेहंदी जिसका नाम है, वो अपनी सैलरी से 2-3 गुना ज्यादा पैसे कमाता है बाहर फील्ड में।